Our question number first is the displacement of a particle executing simple harmonic motion is given by y is equal to a naught plus a sin omega t plus b cos omega t. Then the amplitude of its oscillation is given by. देखिए बच्चों, हमें इस क्वेश्चन में डिस्प्लेसमेंट गिवन है y is equal to a naught plus a sin omega t प्लस बी कॉस ओमेगा टी। ओके, ये हमें डिस्प्लेसमेंट गिवन है। हमें क्या फाइंड आउट करना है? एम्पलीट्यूड ऑफ इट्स ऑसिलेशन हमें फाइंड आउट करना है। ओके, एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन हमें फाइंड आउट करना है। ओके बच्चों, देखिए देखिए बच्चों, द जनरल द जनरल इक्वेशन of SHM can be given as the general equation of SHM can be given as x equal to a sin omega t plus b cos ओमेगा टी। ओके बच्चों, ये हमारा जनरल इक्वेशन ऑफ एसएचएम है। सपोज दिस इज आवर इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड दिस इज आवर इक्वेशन नंबर सेकेंड। ओके बच्चों, देखिए बच्चों, हियर फ्रॉम फ्रॉम इक्वेशन first and second, we we can we can say that a naught be the value of mean mean position at which y is equal to 0. Okay, at which y is equal to 0. So here we write amplitude r is equal to अंडर रूट ऑफ ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ओके, ये हमारा एम्पलीट्यूड है। एज टू फंक्शन साइन एंड cosine, as two function sine and cosine have phase shift to phase shift
to 90 degree, here we write r is equal to under root of a का square plus b का square. Okay, here cos 90 is equal to 0. Okay, two functions sine and cosine have phase shift to 90 degree. So here we write cos 90 is equal to 0. तो हमारा एम्पलीट्यूड क्या आ गया, r इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर. ओके बच्चों, so here our right answer will be option number a is correct. Amplitude of its oscillation is given by under root of a का square plus b का square. Our question number 2 is the radius of circle, the period of revolution, initial position and sense of revolution are indicated in below figure. Y projection of the radius vector of rotating particle P is. We have to find y projection of the radius vector of rotating particle P. Okay, देखिए बच्चों, 1 मिनट. ये फिगर बना लीजिए. दिस इज 3 मीटर, 3 मीटर रेडियस है. T is equal to 4 second and this point is T is equal to T second. Okay, and this is T is equal to 0. This is our y axis. ओके बच्चों, ये एंगल है हमारा ओमेगा टी एंड दिस इज पॉइंट ओ. देखिए बच्चों, लेट लेट ओ बी द let O be the center of circle. Let O be the center of circle. Then at t is equal to 0, the displacement y is maximum and have value 3 मीटर. ओके बच्चों, लेट ओ बी द सेंटर ऑफ सर्कल. ये ओ जो हमारा सेंटर ऑफ सर्कल है. देन एट t is equal to 0, the displacement y is maximum and have value 3 मीटर. ओके, आगे देखिए. as the general at the general as the general equation of displacement of a particle
will be in the form, देखिए बच्चों, the general equation of displacement of particle will be in the form y is equal to a cos omega t. Okay, here a is equal to 3 meter, amplitude a is equal to 3 मीटर. ओके, देखिए ओमेगा इज इक्वल टू होता है 2 पाई बाई टी. ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी. टी इज इक्वल टू है हमारा 4 सेकेंड, सो हियर वी राइट 2 पाई बाई 4 विच इज इक्वल टू आ गया आपका पाई बाई 2. ओके, क्वेश्चन में हमें गिवन है, गिवन टी इज इक्वल टू 4 सेकेंड. ओके, देखिए बच्चों हमारा ओमेगा इज इक्वल टू आ गया पाई बाई 2. ओके, तो हम इक्वेशन को क्या लिख लेंगे. ओके, सपोज दिस इज आवर इक्वेशन नंबर फर्स्ट. सो हियर वी राइट फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, here we write y is equal to a is equal to 3 meter. So here we write 3 into cos pi by 2 t in meter. Okay, y is in meter. So here our right answer will be option number C is correct. Okay, y of t is equal to आ गया 3 cos pi by 2 t. Okay, where y in meter. Okay, our right answer will be option number C is correct. Our question number 3 is, a particle executes linear simple harmonic motion with an amplitude of 3 centimeter. When the particle is at 2 centimeter from the mean position, the magnitude of its velocity is equal to that of its acceleration. Then its time period in second is. देखिए बच्चों, एम्पलीट्यूड हमें क्या गिवन है, एम 1 मिनट, एम्पलीट्यूड ए इज इक्वल टू गिवन है 3 सेंटीमीटर. ओके, एंड यक्स इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर. ओके बच्चों, हमें इस क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है, टाइम पीरियड इन सेकेंड. ओके, when when velocity is equal to acceleration. Okay, 1 minute, when velocity is equal to acceleration. Okay, देखिए बच्चों, वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है ओमेगा इज ओमेगा इंटू अंडर रूट ऑफ एम्पलीट्यूड का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. ओके बच्चों, हियर ए इज एम्पलीट्यूड. ओके, एंड एक्स इज displacement displacement from mean position.
ओके बच्चों, x is displacement from mean position. मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन इन एसएचएम क्या होता है? एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू होता है ओमेगा स्क्वायर एक्स. ओके, दिस इज आवर मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल इन एसएचएम. ओके, ये क्या है हमारा? 1 मिनट. दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन बच्चों, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल इन एसएचएम. ओके, वेन, देखिए बच्चों, वेन x इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, देन उस केस में हमारा बोल रहा है वेलोसिटी इज इक्वल टू एक्सेलरेशन. ओके, सो हियर वी राइट ओमेगा इनटू अंडर रूट ऑफ 1 मिनट बच्चों, ओमेगा इंटू अंडर रूट ऑफ ए का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स. ओके, एक ओमेगा से एक ओमेगा कट गया, क्या बचा? हियर वी गेट अंडर रूट ऑफ ए का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा एक्स. ओके बच्चों, यहाँ से हमारा ओमेगा की वैल्यू क्या आ जाएगी? हियर वी गेट ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स. ओके, देखिए बच्चों, ए इज इक्वल टू है 3 सेंटीमीटर एंड एक्स इक्वल टू है 2 सेंटीमीटर. अब इसमें वैल्यूज को पुट कर दीजिए. सो हियर वी गेट अंडर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2. तो यहाँ से ओमेगा की वैल्यू क्या आ गई? अंडर रूट ऑफ 9 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2. क्या आ गया? ओमेगा इज इक्वल टू 5/2. ओके बच्चों, अंडर रूट 5/2 आ गया. ठीक है, ओमेगा इज इक्वल टू क्या आ गया? अंडर रूट ऑफ 5/2. ओके, देखिए बच्चों, हमें क्या फाइंड आउट करना है? टाइम पीरियड, टाइम पीरियड t इज इक्वल टू होता है 2 पाई/ओमेगा. सो हियर वी राइट 2 पाई डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ 5/2. ओके, तो यहाँ से क्या आ जाएगी वैल्यू? हियर वी गेट 4 पाई/√5. ओके, इन सेकेंड टाइम पीरियड t इज इक्वल टू आ गया 4 पाई/√5 सेकेंड. So here our right answer will be option number C is correct. Okay बच्चों, टाइम पीरियड क्या आ गया? 4 पाई/√5 सेकेंड. ओके, दिस इज आवर रिक्वायर्ड solution. Our question number 4 is, when two displacements represented by y1 is equal to a sin omega t and y2 is equal to b cos omega t are superimposed,
द मोशन इज। देखिए बच्चों, हमें इस क्वेश्चन में डिस्प्लेसमेंट्स गिवन है। y1 इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी एंड y2 इज इक्वल टू b कॉस ओमेगा टी। ओके, हमें क्या फाइंड आउट करना है? हम इसका एम्पलीट्यूड फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, वी हैव टू फाइंड आउट एम्पलीट्यूड। ओके, तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। देखिए, y1 इज इक्वल टू है a साइन ओमेगा टी एंड y2 इज इक्वल टू है b कॉस ओमेगा टी। ओके बच्चों, तो इसको हम लिख सकते हैं b साइन इन ब्रैकेट ओमेगा टी प्लस पाई बाय टू। ओके बच्चों, देखिए साइन हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। ठीक है, एंड साइन हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है? पॉजिटिव। देखिए बच्चों, ओमेगा टी प्लस पाई बाय टू मतलब कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है? साइन पॉजिटिव होता है, तो सेम वैल्यू आ जाएगा कॉस ओमेगा टी। ओके, तो ये दोनों वैल्यूज क्या होंगे? इक्वल होंगे। ठीक है, देन हियर वी राइट द resultant the resultant displacement the resultant displacement is given by y is equal to y1 plus y2। ओके, तो दोनों को ऐड करोगे आप, तब दोनों को ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा? a साइन ओमेगा टी प्लस b cos ओमेगा टी। ओके, या फिर आप लिख सकते हो इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस बी साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। ओके बच्चों, इसको हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस फाई। सिमिलरली यही एक्सप्रेशन है। ओके, तो इसमें एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा? एम्पलीट्यूड ए इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। ओके, तो आप बोल सकते हो कि हेंस हेंस द मोशन ऑफ हेंस द मोशन ऑफ सुपर imposed wave hence the motion of superimposed wave is simple
हार्मोनिक, सिंपल हार्मोनिक with amplitude under root of a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर. ओके, hence the motion of the superimposed wave is simple harmonic with amplitude under root of a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर. ओके बच्चों, so here our right answer will be option number C is correct. Motion is simple harmonic with amplitude under root of a का square plus b का square. Okay, this is our required solution. Our question number 5 is, a particle is executing SHM along a straight line. Its velocities at distance x1 and x2 from the mean position are v1 and v2 respectively. Its time period is, देखिए बच्चों, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन क्या है, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन इज x1 and x2. okay, x1 and x2 and velocities क्या गिवन है, velocities v1 and v2. हमें क्या फाइंड आउट करना है, टाइम पीरियड t फाइंड आउट करना है. ओके बच्चों, चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं. देखिए, लेट ए बी द amplitude, let A be the amplitude of oscillation then here we write b is equal to होता है ओमेगा इंटू अंडर रूट ऑफ ए का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. ओके, सिमिलरली हम दोनों डिस्प्लेसमेंट के लिए लिख लेंगे, v1 is equal to ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए का स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर. ओके बच्चों, दोनों साइड जब हम स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, हियर वी गेट v1 का स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा का स्क्वायर इंटू इन ब्रैकेट ए का स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर. ओके, सपोज दिस इज आवर इक्वेशन नंबर फर्स्ट. सिमिलरली हम v2 के लिए लिख लेंगे, v2 इज इक्वल टू ओमेगा इंटू अंडर रूट ऑफ ए का स्क्वायर माइनस x2 का स्क्वायर. ओके, जब दोनों साइड हम स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या आ जाएगा, हियर वी गेट v2 का स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा का स्क्वायर इंटू इन ब्रैकेट ए का स्क्वायर माइनस x2 का स्क्वायर. ओके बच्चों, सपोज दिस इज आवर इक्वेशन नंबर सेकेंड. ओके बच्चों, अब हम इक्वेशन सेकेंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करेंगे. क्या आ जाएगा, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकेंड from equation first. Here we get what we get, v1 का स्क्वायर माइनस v2 का स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा का स्क्वायर इंटू इन ब्रैकेट x2 का स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर. ओके बच्चों,
अब यहाँ से हम ओमेगा की वैल्यू निकाल लेंगे। ओमेगा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ V1 का स्क्वायर, 1 मिनट, अंडर रूट ऑफ V1 का स्क्वायर माइनस V2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई x2 का स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर। ओके, ये हमारा ओमेगा आ गया। देखिए टाइम पीरियड t इज इक्वल टू होता है 2 पाई बाई ओमेगा। ओके, तो इसमें अब हम ओमेगा डिवाइड कर देंगे 2 पाई को। ठीक है, ओमेगा की वैल्यू किसके बराबर है, अंडर रूट ऑफ V1 का स्क्वायर माइनस V2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई x2 का स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर। तो यहाँ पे वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, 2 पाई इंटू अंडर रूट ऑफ x2 का स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई V1 का स्क्वायर माइनस V2 का स्क्वायर। ओके, टाइम पीरियड t इज इक्वल टू आ गया 2 पाई इंटू अंडर रूट ऑफ x2 का स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई V1 का स्क्वायर माइनस V2 का स्क्वायर। ओके बच्चों, ये हमारा टाइम पीरियड आ गया। ओके, so here our right answer will be option number B is correct। टाइम पीरियड t इज इक्वल टू आ गया 2 पाई इंटू अंडर रूट ऑफ x2 का स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई V1 का स्क्वायर माइनस V2 का स्क्वायर। दिस इज आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। आवर क्वेश्चन नंबर 6 is the potential energy of a simple harmonic oscillator when the particle is halfway to its end point। देखिए बच्चों, बेसिकली इस क्वेश्चन में हमें पोटेंशियल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी के बीच में रिलेशन बताना है। ठीक है, देखिए पोटेंशियल पोटेंशियल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिंपल सिंपल हार्मोनिक ऑक्सीलेटर, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिंपल हार्मोनिक ऑक्सीलेटर U इज इक्वल टू होता है 1/2 इंटू एम ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। ओके, ये हमारा पोटेंशियल एनर्जी है एंड काइनेटिक एनर्जी काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए सिंपल सिंपल हार्मोनिक ऑक्सीलेटर, काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑक्सीलेटर K इज इक्वल टू होता है 1/2 एम इंटू ओमेगा के स्क्वायर इंटू इन ब्रैकेट ए का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। ओके बच्चों, ये हमारा काइनेटिक एनर्जी है। ओके, हियर एक्स क्या हमारा, एक्स इज डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम
displacement from mean position. Okay. Okay बच्चों, and A is maximum displacement. A is maximum displacement. Okay. या फिर आप बोल सकते हो एम्पलीट्यूड. ओके बच्चों, ए इज मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट और एम्पलीट्यूड. देखो बच्चों, जो हमारा टोटल एनर्जी होता है, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी होता है. ठीक है. सो हियर वी राइट 1/2 यम इंटू ओमेगा के स्क्वायर इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस 1/2 यम इंटू ओमेगा के स्क्वायर ब्रैकेट ए का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर. ओके. जब इसको आप सॉल्व करोगे तो इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 1/2 यम इंटू ओमेगा के स्क्वायर ए का स्क्वायर. ओके. 1 मिनट को थोड़ा नीचे कर लेते हैं. ये बच्चों हमारा टोटल एनर्जी आ गया. देखिए बच्चों, when the particle is half when the particle is half way to its end point, that is at half of its amplitude, when the particle is halfway to its end point, that is at half of its amplitude. So here we write x equal to a/2. Okay. Hence potential energy U is equal to होता है 1/2 यम इंटू ओमेगा के स्क्वायर इंटू एक्स का स्क्वायर. तो यहाँ पे हम एक्स की जगह पुट करेंगे a/2. तो क्या आ जाएगा एक्सप्रेशन? हियर वी गेट 1/2 इंटू यम इंटू ओमेगा का स्क्वायर इंटू इन ब्रैकेट a/2 का स्क्वायर. ओके. जब इसको आप स्क्वायरिंग करोगे तो क्या आ जाएगा? हियर वी गेट एनर्जी इज इक्वल टू 1/4 इंटू इन ब्रैकेट 1/2 यम इंटू ओमेगा के स्क्वायर इंटू ए का स्क्वायर. ओके. ये हमारा किसके बराबर है बच्चों? इज इक्वल टू टोटल एनर्जी. ओके. तो हमारा एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा? हियर वी गेट U इज इक्वल टू E/4. ओके. U इज इक्वल टू आ गया E/4. So here our right answer will be option number A is correct. U is equal to आ गया पोटेंशियल एनर्जी, E is equal to आ गया E/4. Okay. This is our required solution. Our question number 7 is, a pendulum is hung from the roof of a sufficiently high building and is moving freely to and fro like a simple harmonic oscillator. The
The acceleration of the bob of the pendulum is 20 meter per second square at a distance of 5 meter from the mean position. The time period of the oscillation is, देखिए बच्चों, एक्सेलरेशन ऑफ बॉब ऑफ पेंडुलम इज इक्वल टू गिवन है 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, हमें क्या फाइंड आउट करना है? टाइम पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन। ओके, एंड डिस्टेंस फ्रॉम मीन पोजीशन x इज इक्वल टू है 5 मीटर। ओके बच्चों, चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। देखिए, एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। ओके बच्चों, so here we write mod a is equal to omega square x. Okay, suppose this is our equation number first। देखिए, x इक्वल टू 5 मीटर है। ओके, एंड एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू है हमारा 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, तो इसमें वैल्यूज को पुट कर दीजिए। हियर वी गेट 20 इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू है 5 मीटर इंटू 5 कर देंगे। ओके, तो यहाँ से ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 4। ओके, ओमेगा की वैल्यू क्या आ गई? 2 रेडियन पर सेकेंड। ओके, देखिए बच्चों, टाइम पीरियड t इज इक्वल टू होता है 2 पाई बाई ओमेगा। ओके, तो यहाँ आप ओमेगा की वैल्यू पुट कर दीजिए 2 पाई डिवाइडेड बाई 2। ओके, तो यहाँ पे t इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चों? t इज इक्वल टू पाई सेकेंड। ओके, ये हमारा टाइम पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन आ गया। So here our right answer will be option number B is correct। Time period of oscillation t is equal to आ गया pi second। This is our required solution। Our question number 8 is, a body of mass m is attached to the lower end of a string whose upper end is fixed. The spring has negligible mass. When the mass m is slightly pulled down and released, it oscillates with a time period of 3 seconds. When the mass m is increased by 1 kg, the time period of oscillation becomes 5 seconds। The value of m in kg। देखिए बच्चों, यहाँ पे एक स्प्रिंग है। ठीक है, 1 मिनट, ये स्प्रिंग है, इसके लोअर एंड पे एक मास अटैच है ऑफ मास m। ओके, और जो स्प्रिंग का मास है नेग्लिजिबल है। स्प्रिंग कांस्टेंट इज k। ओके, टाइम पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन t इज इक्वल टू है इनिशियली 3 सेकेंड। ओके, इनिशियली जो हमारा टाइम पीरियड है t1 इज इक्वल टू है 3 सेकेंड। देखिए बच्चों, जो ये मास है ब्लॉक का m, जब इसको हम 1 kg इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है, ये जो ब्लॉक है इसका 1 kg वेट हम इंक्रीज कर देते हैं m+1, तो हमारा टाइम पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन t2 इज इक्वल टू हो जाता है टाइम पीरियड t2 इज इक्वल टू हो जाता है 5 सेकेंड। ओके, तो हमें इस क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है? वैल्यू ऑफ m। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं।
देखिए देखिए बच्चों, टाइम पीरियड जो होता है हमारा, टाइम पीरियड t इज इक्वल टू होता है 2 पाई अंडर रूट ऑफ यम बाई के। ओके, देखिए बच्चों, ये हमारा केस फर्स्ट है, ठीक है, और ये हमारा केस सेकेंड है, ठीक है। तो पहले हम केस फर्स्ट देखते हैं। केस फर्स्ट, द टाइम पीरियड t1 इज इक्वल टू लिखेंगे 2 पाई अंडर रूट ऑफ m बाई के। ओके, सपोज दिस इज आवर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सिमिलरली हम केस टू में लिख लेते हैं टाइम पीरियड t2 इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ m प्लस वन डिवाइडेड बाई के। ओके, सपोज दिस इज आवर इक्वेशन नंबर सेकेंड। ओके बच्चों, अब इक्वेशन फर्स्ट को हम सेकेंड से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए, ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट बाई equation second, here we get what we get, t1 divided by t2 is equal to under root of 2 pi under root of m by k whole divided by 2 pi under root of m plus 1 divided by k। ओके, ये कट गया 2 पाई, के से के भी कट जाएगा, अंडर रूट के, क्या बचेगा, हियर वी गेट अंडर रूट ऑफ m डिवाइडेड बाई m प्लस 1। ओके, t1 इज इक्वल टू 3 सेकेंड है एंड t2 इज इक्वल टू 5 सेकेंड है, तो यहाँ डिवाइड कर देंगे, 3/5 हो जाएगा, ठीक है। क्या आ गया बच्चों एक्सप्रेशन, हियर वी गेट 3/5 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ m बाई m प्लस 1। ओके, दोनों साइड हम स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या आ जाएगा, हियर वी गेट 9/25 इज इक्वल टू m डिवाइडेड बाई m प्लस 1। ओके, अब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, हियर वी गेट 9m प्लस 9 इज इक्वल टू 25m। ओके, यम वाले पार्ट को एक साइड ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा, 16m इज इक्वल टू 9। यम की वैल्यू क्या आ गई, 9/16। ओके बच्चों, यम इज इक्वल टू आ गया 9/16 kg। ओके, मास ऑफ ब्लॉक क्या आ गया, 9/16 kg। ओके, so here our right answer will be option number D is correct। ओके, m is equal to आ गया 9/16 kg। ओके, this is our required solution।